नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। राज्य के डीजीपी विकास सहाय द्वारा दिए गए 100 घंटे के अल्टीमेटम के दौरान दाहोद जिला पुलिस ने 10 को पासा और 10 को तड़ीपार किया। अवैध निर्माणों को तोड़ने के अलावा बिजली चोरी के मामलों का पता लगाया और दंडात्मक कार्रवाई की। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बने दबंग तत्वों के खिलाफ 100 घंटे में कड़ी कार्रवाई करने के डीजीपी के आदेश के बाद दाहोद पुलिस भी हरकत में आई। पिछले 100 घंटों के दौरान दाहोद जिला पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में डीवाईएसपी जगदीश भंडारी ने जानकारी दी कि जिले के कुल 20 पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों ने ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस अभ्यास में 325 दबंग तत्वों की पहचान की गई। इसमें शराब की तस्करी और बिक्री करने वाले शराब तस्कर, शरीर से संबंधित अपराध करने की आदत वाले, चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग या फुटकर चोरी करने वाले बदमाशों को भी शामिल किया गया है, जिनमें से 10 लोगों के खिलाफ पासा और 10 लोगों के खिलाफ तड़ीपार के आदेश दिए गए हैं। जबकि बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने बिजली कर्मचारियों के साथ मिलकर बिजली चोरी पकड़ी और कुल 7,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि पुलिस ने खनिज चोरी में 8 वाहनों को जब्त कर लिया है और उस मामले में लगभग 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि दाहोद के रलियाती इलाके में 12 शराब तस्करों के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की गई है। सोशल मीडिया में अभद्र और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही रात के समय 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 3 लोगों पर कुल 74,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीवाईएसपी भंडारी ने बताया कि आने वाले दिनों में भी पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जी सर राज्य सरकारनी असामाजिक तत्वों विरुद्धની કડકાઈથી કામ કરવા અંગેની સૂચના એ અન્વયે જિલ્લાના પોલીસ વડા ડૉક્ટર આદિપસિંહ ઝાલા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં આ અંગે જેણે અવારનવાર ગુના કર્યા છે, જેમાં મિલકત સંબંધી હોય, પ્રોહિબિશન લગતના હોય, ન્યુસન્સ તત્વો હોય, ખનન લગતના હોય કે ખાણ ખનીજ લગતના હોય, આવા 325 જેટલા ઇસમોને ઓળખ કરી તેઓની યાદી બનાવવામાં આવી હતી। જે અન્વયે તેઓને પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે તેમજ અલગ અલગ થાણાઓમાં બોલાવી તેમને પોલીસની કાયદાકીય ભાષામાં સમજ કરવામાં આવી હતી અને ગુના બાબતે જરૂરી તાકીદ અને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી તથા આ અન્વયે વિવિધ વિભાગોના સંકલનમાં રહી અને મલ્ટી ડાયમેન્શન એપ્રોચથી કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે। આ કામગીરી અંતર્ગત ટોટલ 165 ઉપર અટકાયતી પગલાઓ કે જેમાં પાસાને તડીપારના મળીને 20 કેસો અને અન્ય કેસો મળી 165 ઉપર અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે। આગળ પ્રક્રિયા ચાલુ છે। આ સિવાય અલગ અલગ આરોપીઓના ઘરે જેઓ વીજ ચોરી કરતા હોય તેમાં એમજીસીની ટીમ સાથે સંકલન રાખીને 6 લાખ ઉપરનો દંડ ફટકારવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી છે અને આ કામગીરી હાલમાં પણ ચાલુમાં છે। આ ઉપરાંત ખનિજ ચોરીના 8 જેટલા કે જેમાં ઓવર ડાયમેન્શન કે ઓવરલોડ હોય તે પ્રકારના વાહનોને જપ્ત લઈ તેમના મેમો પર કામગીરી પણ કરવામાં આવી છે, જેમાં લગભગ 16 લાખ જેટલો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત જેઓના લિસ્ટમાં નામ હતા અને પ્રોહિની પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા હતા તેવા ઇસમોના રસ્તા ઉપરના જાહેર દબાણોની ઓળખ કરી તેમને ચેતવણી આપીને એ 12 જેટલા દુકાનો કાચીને પાકી હટાવવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી છે। આ સિવાય આ લિસ્ટમાંથી 2 વ્યક્તિઓ પરમેશ્વર પલાસ અને દિનેશ માવી કે જેઓના સોશિયલ મીડિયામાં ગાળ બોલતો અને ધમકી આપતો એ પ્રકારનો એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જે વિડીયો આધારે તેમના પર ગુનો દાખલ કર્યો છે અને એમની પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત 3 જેટલા ઇસમો કે જેઓ 10 વાગ્યા પછી ડીજે વગાડી રહ્યા હતા તેઓના પર ડીજે જપ્ત લઈ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી લગભગ 74,000 જેટલો દંડ કરાવવામાં આવ્યો છે। આ સિવાયની પણ તમામ વિભાગ, નગરપાલિકા, મહેસૂલ વિભાગ, પંચાયત, એમજીવીસીએલની સાથે તમામ ટીમો સંકલનમાં રહી અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા ચાલુ હાલમાં શરૂ છે। આ ઉપરાંત જે લોકો છે એ તમામ પોલીસની વોચ હેઠળ છે। તેઓના માત્ર પોલીસ લગતા ગુનાઓ નહીં પરંતુ સમાજમાં નુકસાન થાય તે પ્રકારના અન્ય કોઈ પણ અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરશે કે એ બાબતે કૃત્ય કરશે તો એના ઉપર પોલીસની સખત નિગરાની છે અને સતત વોચ ચાલુ છે। એના વિરુદ્ધ જે પણ કાયદામાં જે વિભાગ लगता હોય એ તમામ પ્રકારની કડકમાં કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। अगली खबर, जहां जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सुधीर जोशी के मार्गदर्शन में और सरकारी होम्योपैथी दवाखाना नीमनलिया जायडस हॉस्पिटल के एमओ डॉक्टर मोनाबेन राठवा के सहयोग से सरकारी नर्सिंग कॉलेज दाहोद की छात्राओं के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय स्वास्थ्य संवर्धन और आयुष प्रणाली जागरूकता में नर्सिंग की भूमिका था। इस विषय पर मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधीर जोशी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा की।
लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए कर्तव्य का निर्वहन कैसे करें, इस बारे में विस्तार से समझाया गया। वर्तमान समय की चुनौतियों में स्वास्थ्य संवर्धन आयुष के सिद्धांतों द्वारा कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आयुर्वेद, योग आदि के बारे में जानकारी और प्रदर्शन किया गया। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में डॉक्टर मोनाबेन राठवा द्वारा विस्तृत जानकारी देने सहित मार्गदर्शन दिया गया। छात्रों में ज्ञान, कौशल, व्यवहार और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया। अगली खबर, जहां वाहन चालकों की लापरवाही और वाहन की क्षमता से अधिक गति के कारण दाहोद जिले में बीते 24 घंटे के दौरान अलग अलग जगहों पर हुई हिट एंड रन की 4 घटनाओं में 70 वर्षीय वृद्धा सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिले में अलग अलग जगहों पर बीते 24 घंटे के दौरान हुई हिट एंड रन की 3 घटनाओं में से एक घटना पिछली देर रात दाहोद के अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर स्थित होंडा शोरूम के सामने यू टर्न पर हुई, जिसमें एक ट्रक चालक अपने ट्रक को अहमदाबाद की ओर से तेज गति से और लापरवाही से चलाकर रॉन्ग साइड से धीमी गति से आ रहे ट्रक से टकरा गया, जिससे हुए भीषण हादसे में आइसर ट्रक का कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आइसर ट्रक के चालक और कंडक्टर दोनों उसमें फंस गए, जिसमें कंडक्टर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में कैबिन से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल दाहोद के जायडस अस्पताल भेज दिया गया, जबकि क्षतिग्रस्त कैबिन में फंसे ड्राइवर को कैबिन से मृत अवस्था में बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जायडस अस्पताल भेज दिया गया। और इस संबंध में दाहोद ए डिवीजन पुलिस ने फेटल का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में हिट एंड रन की दूसरी घटना देवगढ़ बारिया के पिपलोद गांव में हाईवे पर शाम के समय हुई, जिसमें एक अज्ञात वाहन चालक अपने वाहन को तेज गति से और लापरवाही से चलाकर हाईवे पर सड़क के किनारे पैदल जा रही पिपलोद गांव के तालाब फलिया में रहने वाली 70 वर्षीय डाहीबेन सोमा भाई वनकर को टक्कर मार दी, जिससे डाहीबेन वनकर सड़क पर गिर गई और शरीर पर गंभीर जानलेवा चोटें लगने से उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस संबंध में मरने वाली डाहीबेन वनकर के पुत्र 50 वर्षीय माना भाई सोमा भाई वनकर ने पिपलोद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पिपलोद पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ फेटल का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। जबकि जिले में हिट एंड रन की तीसरी घटना लीमखेड़ा तालुका के पल्ली गांव में पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के सामने रोड पर रात के 9 बजे के आसपास हुई, जिसमें लीमखेड़ा के हिंडिलिया गांव के उबेर फलिया में रहने वाले 38 वर्षीय गुलाब सिंह छत्र सिंह पटेल अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से और लापरवाही से चला रहे थे, तभी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिसके कारण चालक गुलाब सिंह छत्र सिंह पटेल को सिर के भाग में तथा शरीर के भाग में गंभीर जानलेवा चोटें लगने से उसे इलाज के लिए तत्काल लीमखेड़ा सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में हिंदौलिया गांव के बाबू भाई कसना भाई पटेल ने लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में फेटल का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि दुर्घटना की चौथी घटना जैसावाड़ा धानपुरा रोड पर 2 बाइक के बीच हुई, जिसमें एक बाइक पर 3 और सामने से बाइक पर बैठे 2 लोग मिलकर कुल 5 घायल हुए। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दाहोद सिविल अस्पताल लाया गया। हालांकि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर 17 मार्च 2025 से गेहूं की खरीद शुरू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण पूरे राज्य में स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर 1/1/2025 से 16 मार्च तक किया गया था, जिसे बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया है। पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड की प्रति, नवीनतम गांव नमूना और फसल की बुआई के बारे में प्रविष्टि 7, 12 या 8 में नहीं हुई हो तो तलाटी के हस्ताक्षर और मुहर वाला प्रमाण पत्र, किसान के नाम के बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक की जेरोक्स कॉपी या कैंसिल चेक की कॉपी साथ मिलानी होगी। राज्य के किसान यदि अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हो तो उनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए संबंधित ग्राम पंचायत से संपर्क कर पंजीकरण करवा लें। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों को जीरजी के माध्यम से खरीद के बारे में सूचित किया जाएगा। खरीद के समय किसान को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र साथ रखना होगा। किसान खाता धारक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही खरीदी की जाएगी, जिसका ध्यान रखें। हेल्पलाइन नंबर, पंजीकरण में कोई परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर 85111-71718 तथा 85111-71719 पर संपर्क किया जा सकता है।
अगली खबर, जहां यूनिसेफ द्वारा एस्पायर प्रोग्राम और जिला महिला एवं बाल अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिका पंचायत की बेटियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल दाहोद में मनाया गया। इस कार्यक्रम में बालिका पंचायत द्वारा बेटियों के जन्म का स्वागत करने, समानता का अधिकार, बच्चों के अधिकार, बेटियों में पंचायती राज, जातिगत भेदभाव, किशोर किशोरी के लिए एस्पायर प्रोग्राम, जीवन कौशल और स्वरक्षा प्रशिक्षण, स्कूल से करियर मार्गदर्शन, प्रतिस्पर्धी गतिविधियों के माध्यम से चैंपियन की पहचान, बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज प्रथा का दृढ़ता से विरोध, बेटियों की शिक्षा में ड्रॉप आउट, बच्चों की रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर बालिका पंचायत की भागीदारी के माध्यम से विशेष अभियान के रूप में बालिका पंचायत के एक सरपंच और अन्य सदस्यों का गठन किया गया। इस अवसर पर झालोट, गड़बाड़ा, दाहोद तालुका के विभिन्न गाँव की बालिका पंचायत की बेटियां उपस्थित रही और बेटियों द्वारा की जाने वाली बालिका पंचायत के माध्यम से काम और भविष्य के मुद्दों पर उन्हें उचित मार्गदर्शन मिल सके, इसके लिए विस्तार से चर्चा की गई। अगली खबर, जहां वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ दाहोद द्वारा दिनांक 21 को अखिल भारतीय वीर प्रदर्शन सप्ताह के अंतर्गत एक विशाल गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सहायक मंत्री BK गर्ग और सचिव ललित कुमार मीणा ने कर्मचारियों को UPS और निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। साथ ही इंजीनियरिंग विभाग को कॉलोनी के रास्तों को दुरुस्त न करने पर आने वाले समय में AEN ऑफिस के सामने आंदोलन किया जाएगा, ये भी बताया गया। इस विरोध प्रदर्शन में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की सभी शाखा नंबर सहित कार्यकर्ता अच्छी संख्या में उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।